Good morning, my dear students. I am your English subject teacher, Apeksha Didi. You all know me very well. So today is your first class. So let's we start with your new book. You have two books. One is Honeycomb, and second one is It So Happened. So today we will start your first book, It So Happened. Okay, and the first chapter of your book. As you see, the book is like this one. It So Happened, chapter 1, and the name of the chapter 1 is How the Camel Got His Hump. As you know that from the name you can imagine the story is really very interesting. So Apeksha Aaron, your teacher, welcomes you all. So let's start the chapter. If you have book, then you can see that the first page of your book. I also have the book. So the first page of your book is How the Camel Got His Hump. So let's begin. If you not have book, please don't panic because I also send you the PDF of the book. How the camel got his hump. That means how the camel got his hump on the back. First part. The word has just begun. The word had just begun. That means जब दुनिया शुरू हुई थी and the animals were working for humans. What is the animal doing that time? They are working for the human beings like us. There was one lazy animal that did nothing. And there is also an animal. He is so much lazy. That means he don't want to do anything. And said nothing. But that means what's he doing? कुछ भी काम नहीं करता था. लेकिन क्या कहता था? सिर्फ हम को कहता था और कुछ भी नहीं करता था. Okay. Even the clever decent. What is the word here? Decent. Was this wits end? That means जो क्लेवर जीत था वो भी क्या हो गया था, अपनी बुद्धि के अंत तक उससे परेशान हो गया था. देयर इज ऑल्सो आई हैव द हार्ड किस फॉर यू. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वर्ड डी जिन. दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? जिन. क्या कहेंगे हम उसे? जिन प्रोनाउंस करेंगे. ओके हम उसे जिन प्रोनाउंस करेंगे. इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग टाइम when the word was new, the old word is very new. That means nothing is old. And the animals were just beginning to work for men. What is the animal doing that time? They are doing work for the animals. There was a camel. You can also see on the screen and your book also. There was a camel. And he lived in the middle of the howling. What is the meaning of the howling desert? Howling meaning, I also mentioned the meaning of the howling. भीषण. भीषण दैट मीन्स कि बहुत ही घना डेजर्ट जिसमें बहुत सारी रेत थी, ऐसी जगह पर वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. बिकॉज वॉट इज द हैबिट ऑफ द कैमल दैट टाइम? ही डोंट वॉन्ट टू डू एनी वर्क बिकॉज ही वॉज सो मच लेजी. ही एट स्टिक्स. स्टिक्स. वॉट इज स्टिक? स्टिक दैट मीन्स जो ऐसी लंबी सी हमारी लकड़ी की टुकड़ा होता है वो. थ्रॉन. वी नो द मीनिंग ऑफ द थ्रॉन. कांटा. एंड प्रिकल्स. द मीनिंग ऑफ द प्रिकल्स ऑल्सो कांटे. जो हम कांटे बोलते हैं उसको पिकल्स भी हम कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसे? पिकल्स. आई ऑल्सो डिड अ मिस्टेक हेयर स्पेलिंग. PR. हियर इज PRICKLES. कांटे. थ्रॉन के साथ में जो कांटे और जो होते हैं रगड़िए उनको प्रिकल कहते हैं. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम. इफ एनीवन ट्राई टू टॉक विद द कैमल, व्हाट इज द कैमल सेड इन द आंसर? Hum. Only one single word, that is hum. Just hum and no more and no any other word he used. Presently the horse came to him on Monday morning. उस दिन मंडे के मॉर्निंग जो होती है उसके पास में कोई आता है, एक हॉर्स आता है विथ अ सैडल ऑन हिज बैक. हॉर्सी का मीनिंग यहाँ पर जो है वो होगा, हॉर्सी के मीनिंग के लिए मतलब दैट मीन्स जो छोटा सा डॉग है उसके लिए ये बात कही गई है. हॉर्सी जो है उसके लिए कि वो एक वहाँ पर हॉर्स, एक उसके पास में घोड़ा वहाँ पर आता है. लेकिन स्टिक कैसी, जैसे आप देख सकते हैं कि डॉगी जो है उसके मुंह में भी आप देख सकते हैं कि एक सैडल है. ठीक है, एक टुकड़ा है उसके हाथ में लकड़ी का मुंह में. तो हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. मंडे मॉर्निंग को उसके पास में हॉर्स आता है विद अ सैडल ऑन हिज बैक.
क्या होता है उसके बैक पे जो सैडल्स होती हैं, दैट मीन्स जो लकड़ी का गट्ठर होता है वो उसकी पीठ पर होता है। और कैमल से वो क्या कहता है, केमल, ओ केमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्या करो, आओ और आकर क्या करो, हम लोग जैसे काम कर रहे हैं हमारे साथ में काम करो। बट व्हाट द केमल सेड इन द आंसर, ओनली वन सिंगल वर्ड, हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। क्या करता है, हॉर्स जाता है और वो जो उनका एक मेन होता है उसको कहता है, क्या कहता है, प्रेजेंटली तो क्या कहता है जाकर के कि क्या करता है केमल, कुछ काम नहीं करता है, लेजी है, लेकिन बदले में क्या बोलता है सिर्फ हम। फिर प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। क्या होता है, हॉर्स चला जाता है और उसके पास में कौन आता है, एक डॉग आता है। आप देख सकते हैं छोटा सा डॉग उसके पास में आता है। मेरे पास जो बुक है देखिए आप उसमें भी देख सकते हैं, छोटा सा डॉग उसके पास में आता है और क्या कहता है, विद स्टिक ऑन हिज माउथ। क्या करता है, उसके मुंह में भी क्या होती है, जैसे उसकी पीठ पे गठरियां होती है ना लकड़ी की, वैसे उसके मुंह में क्या होता है, एक छोटी से लकड़ी का उसके मुंह में एक टुकड़ा होता है। और वो क्या कहता है, तो टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज, आपकी बुक का नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज ले आते हैं आपका। ये देखिए, ठीक है। तो क्या कहता है वो उससे, कैमल, ओ कैमल, जैसे हॉर्स कहता है सेम उसका आवाज लगाता है, कम एंड फिश द केरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्या करो, आओ तुम भी, और क्या करो, जैसे हम लोग सब काम कर रहे हैं ना, ऑक्स है, हॉर्स है, डॉग है, सब जैसे काम कर रहे हैं ना, तुम भी आओ और तुम भी क्या करो, काम करो। बट कैमल क्या कहता है आंसर में, गिव मी आंसर, I know that you all give the answer at your home. What is the camel said in the answer? And the dog went away and told the man. Dog भी सेम प्रोसेस करता है, क्या करता है, वो भी जाता है और जो मैन होता है उनका उसको कहता है, क्या कहता है, वही सेम चीज। Now presently the ox came to him. पहले कौन आता है, हॉर्स आता है, हॉर्स के बाद कौन आता है, डॉग आता है, डॉग के बाद कौन आता है, ऑक्स आता है। ऑक्स आकर के क्या कहता है कैमल को, with the yoke on his neck. What is the meaning of yoke? देखिए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है योक का मीनिंग, हल जोतने के लिए लगाया जाने वाला गट्ठर। क्या होता है, जब बेल जो है वो क्या करती है, जब हल को जोतती है तो क्या करता है, आपने देखा होगा कि एक जो हमारा एग्रीकल्चर करने वाला मेन होता है वो क्या करता है, उसके यहाँ पर एक वो लगा देता है, लकड़ी का टुकड़ा लगा देता है, गट्ठर लगा देता है, जिससे वो अपने एग्रीकल्चर की प्रोसेस करवाता है ऑक्स से। तो ऑक्स क्या करता है, अपने गले में वो जो टुकड़ा होता है, वो गट्ठर, वो यॉक जिसको कहते हैं, वो लगाए हुए आता है और क्या कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्या करो, आओ और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लगिंग, हल जोतने का काम कर रहा हूँ, आई एम प्लगिंग एंड प्लीज कम, एंड हम लोगों की तरह तुम भी क्या करो, ये हल जोतने का काम करो। बट as it is, what is the camel said in the answer, only hum. And the ox went away and told the man. क्या करता है, वो भी जा करके वो भी अपने बाकी के फ्रेंड्स की तरह किसको कहता है, उस मेन को कहता है। At the end of the day, क्या होता है, जब पूरा दिन ढल जाता है, इवनिंग हो जाती है, the horse and the dog and the ox together and say, क्या करते हैं कि क्या वो जब मेन के पास में आते हैं तीनों और कहते हैं उसको, जब अपनी बात कहते हैं तो क्या कहता है, 303 मतलब 3, आप जो तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आप लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है, आई एम वेरी फॉरगिवेबल फॉर यू, आई एम वेरी फीलिंग वेरी सैड फॉर यू, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। क्या होता है, हम कहीं पर रहते हैं, डेजर्ट में हैं, कहीं पर भी हो तो क्या होता है, सारे एनिमल्स को वर्क करना होता है। तो जो मेन होता है वो क्या कहता है, सिर्फ हर बात के जवाब के लिए हम कह देना काफी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो हम वर्ड है ये डेजर्ट में काम नहीं आएगा। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और ऐसा हम चलने भी नहीं दे सकते। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो हमें क्या करना चाहिए, we have to leave him alone, that means he live in his own self, हमें उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे हमें अकेले रहने देना चाहिए। and you must work double time to make up for it, but आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो भी काम नहीं करेगा आपको और ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डबल काम करना पड़ेगा, डबल टाइम देना पड़ेगा। that made the three very angry, जब वो मेन ये कहता है तो क्या हो जाते हैं वो तीनों फ्रेंड्स कौन, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, वो एंग्री हो जाते हैं, ऐसे गुस्सा हो जाते कि हम क्यों ऐसा करें, वो तो कोई काम नहीं करता। एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, पंचायत तो हम समझते हैं, तीनों क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एंड द केमल केम च्यूइंग,
यूट एंड लास्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ च्यूइंग? वी ऑल नो दैट यूट का मीनिंग यहाँ पर होता है जुगाली करना, अपना मुंह चलाता है. कभी भी कैमल को देखा होगा, क्या करता है? ऐसे करके हमेशा अपना मुंह चलाता रहता है. तो क्या होता है, कैमल क्या करता है, उन तीनों के ऊपर हंसता है कि देखो मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों देखो कैसे पंचायत कर रहे हैं यहाँ पर. और किसके बारे में बात करें? मेरे बारे में बात करें. तो मैं तो लेजी हूँ, आई एम लेजी, आई डोंट वांट टू डू एनी वर्क दैट टाइम. देन ही से, और क्या कहता है उनकी हंसी उड़ाते हुए, एंड वेंट अवे अगेन. और क्या करता है? चला जाता है. प्रेजेंटली देयर कम अलोंग द जिन. क्या करते हैं वो तीनों? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ DGINN? As we all know that the pronunciation of this word is Jin. क्या करते हैं वो तीनों? जिन के पास आते हैं. Who was in charge of all desert? क्या होता है, वो जो जिन होता है ना, उसके पास पूरा जो डेजर्ट होता है उसका उसके पास में चार्ज होता है. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. वो कहाँ रहता है? रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ द डस्ट. दैट मीन्स एक जो पूरा आकाश होता है ना, धूल से भरा हुआ, रेत से भरा हुआ, वो वहां पर रहता है. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन पेज, पेज नंबर 3. देखिए, can you visible on the screen that there is a gin, ox, dog and horse. Yes, this is the gin. Okay, तो gin of all desert क्या कहता है? horse. gin of all desert, पूरी जो हमारी डेजर्ट है उसके gin. Is it right for anyone to be idle? Here idle is a phrase and idle is used for the lazy person. Okay, तो क्या कहता है? और इसका एक और अगर हम देखें तो होता है नकारा, जो किसी काम का नहीं होता है. अब आप भी अगर कोई काम नहीं करेंगे, आप जैसे भी होमवर्क दूंगे, आप होमवर्क का जवाब नहीं देंगे, तो मैं भी यही कहूँ ना कि व्हाट अ लेजी गाइज, आप लोग जवाब नहीं देते हैं. तो ऐसे वो क्या कहता है हॉर्स, कि क्या ये सही है? कोई हमारे साथ में रह रहा है, राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, कि उस तरह का उसे आलसी होना चाहिए? सर्टेनली नॉट. क्या कहता है जी जवाब में? हाँ, सही बात है, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए. वेल सेड द हॉर्स. तो हम कहते हैं कि वेल, अच्छी बात है. देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट. लेकिन वो जीन, आपका जो डेजर्ट है, एनिमल इज देयर हु इज डोंट वांट टू डू एनी वर्क. क्या बताता है वो उसे पूरा, कि इन द डेजर्ट देयर इज अ कैमल इन द मिडल एंड ही डोंट वांट टू डू एनी वर्क. लॉन्ग नेक. कैसी होती कैमल की नेक? लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स, and he hasn't done a stroke of work. What is the meaning of stroke here? Stroke का मतलब होता है एक भी पारी. दैट मीन्स आप कोई काम जब करते हैं तो क्या करते हैं? आप आते हैं, जाते हैं, काम करते हो, कहते हैं कि क्या करता है वो, जिसकी इतनी लंबे पैर हैं, उसकी इतनी लंबी नेक है, बट ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क. दैट मीन्स वो एक भी काम नहीं करता है. डोंट डू एनी वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. कब से नहीं किया उसने? मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया. He want trot. That means trot का मीनिंग क्या हुआ है? बहाना दोहराना. क्या करता था? क्योंकि क्या होता था, जब कैमल से कोई भी कुछ भी पूछता था तो वो क्या करता था? हमेशा एक ही बहाना दोहराता था. क्या करता था जवाब में? हमेशा हम, हमेशा यही बोलता था. तो कहते he always doing some one thing only. What is हम? व्यू जिन विजल, यानी ऐसे बिल्कुल आश्चर्य से अपनी सीटी बजाते हुए, विस्लिंग करते हुए कहता है That's my camel. What does he say about it? मतलब मैं, मेरा जो कैमल है उसे जा करके पूछता हूँ कि व्हाट डज ही से अबाउट इट, कि वो इसके बारे में क्या बोलता है. ही सेज हम. क्या बोलता है हॉर्स? कि वो क्या बोलेगा? हम कहेगा. एंड ही वांट प्लग. और वो क्या करेगा? कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ उससे कुछ भी कहते हैं तो जवाब में क्या बोलता है? हम. वेरी गुड. जी क्या बोलता है? बहुत अच्छी बात है. आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली बेटर मी. मैं उसका हम निकाल दूंगा. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू टॉक विथ हिम एंड आफ्टर 1 minute आई विल come again in front of you and give you the answer of your things. क्या कहता है वो? कि again after some time I will come in front of you and give the answer of your all questions. Now comprehension check first step, वो हम बाद में करेंगे. We do after the completing of the chapter in your next lecture. Now turn to the page number 4. Yes. Okay. The jinn remonstrated with the camel who said hum. अब क्या कहता है? जीन इज इन द फ्रंट ऑफ द कैमल. हु, व्हाट इज द कैमल ऑलवेज सेज हाँ. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प. क्या होता है? उसकी सडनली उसकी जो बैक होती है वहाँ पे एक लंप आ जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंप? इन द हिंदी इट्स मीनिंग इज कुबर. विच वॉज द कैमल्स हम? कौन सी? कैमल की हम की लिए बात करें. द जीन एज्यूम द कैमल इज हम would always be a help, not a hindrance. But जीन को क्या भरोसा था? He believed that कि his hump doesn't trouble for the camel, but he helps the camel in every task. Let's start.
The jinn rolled himself in a dust cloth. What is the meaning of dust cloth? रेत का घेरा. कैसा रेत का घेरा? तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो जिन है उसके आसपास ऐसा रेत का बवंडर सा बना हुआ है. तो क्या करता है जिन हमेशा जब वो आता है तो ऐसा डस्ट क्लॉक बन जाता है. तो द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक, अपने आप को डस्ट क्लॉक में ऐसे राउंड करता है. इट टुक अ वॉक क्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट से क्रॉस करके कहाँ पर आता है? एंड फाउंड द कैमल, और उसने कैमल को ढूंढना था. तो ही फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. व्हाट इज द कैमल डूइंग हियर? द कैमल saw his own reflection in the water. If any time you see a fresh water, a water in a big tank, what is you see in there? Your own reflection. And what the camel did there? He also saw his own reflection. You also can see the screen that camel saw in the water, and it's his ऑन रिफ्लेक्शन हियर. तो क्या करता रहता है जब जो होता है हमारा जिन उसे देखता है तो क्या करता रहता है कि मतलब अपना खुद का रिफ्लेक्शन वो वाटर में देख रहा होता है. वॉट इज द जिन सेड? माई फ्रेंड वॉट दिस इज, आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. क्या कहते हैं उसे? मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर रहे, यू डिडंट डू एनी वर्क. द जिन सेट डाउन, और वो विथ हिज चीन इन हिज हैंड, ऐसे अपनी चीन को अपने हाथ में लेता है और बैठ जाता है, सेटल डाउन. While the camel looked at on reflection in the pool of water, but what is camel doing? Camel is saw his on reflection in the water. You have given the 3 extra work for ever since Monday morning. अब क्या होगा? आपको 3 एक्स्ट्रा वर्क करने रहेंगे क्योंकि आपने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है. ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, क्योंकि आपने जो नकारी दिखाई है, लेजीपन दिखाया है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू 3 एक्स्ट्रा वर्क्स, said the jinn. And he went on thinking with his chin in his hand. And again he said like this and thinking about something, that what the extra work he can do. Now turn to the next page, page number 5. Yes. Said the camel. What is the camel? Give the answer. As you all know that I shouldn't say that again if I were you. क्या कहता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा फिर से कभी नहीं कहता. अगेन हार्म एंड हार्म. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. अब आप एक भी बार ये बात नहीं करेंगे. आई वॉन्ट यू टू वर्क बिकॉज वॉट द जिन वॉन्ट टू थिंक. जिन वॉन्ट दैट कैमल डूइंग द वर्क. यू शुड वर्क. एंड द कैमल सेड, बट वॉट द कैमल एज हैबिचुअल हम अगेन. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक. बट अभी वो जैसे ही कहने वाला था वो अपनी बैक देखता है, अपनी कमर देखता है. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिकम. क्या देखता जाता है कि वो बढ़ती जा रही है, एक बड़ी सी हम्प उसके पीछे हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसका कुबड़ कहते हैं हिंदी में. उसे क्या कहेंगे? हम्प कहते हैं, हम्प. एंड जीन उसे फिर कहता है, डू यू सी दैट? तुमने देखा कि क्या हो रहा है? दैट्स योर वेरी ऑन हम्प. आप बहुत हम कहते हैं, ये तुम्हारी खुद की हम्प है. यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. और ये मैंने तुम्हें क्यों दी है? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी काम नहीं करते. टुडे इज थर्सडे. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो एनी वर्क सिंस मंडे. कब से कैमल ने काम नहीं किया था? मंडे से काम नहीं किया था. तो हाउ मेनी डेज देयर व्हेन द वर्क बिगन? नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. कब से नहीं किया उसने? मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. 3 डेज से कैमल ने कोई काम नहीं करता. तो कैमल क्या कहता है? हाउ कैन आई, मैं काम कैसे कर सकता हूँ? विथ इज हम्प ऑन माई बैक. क्योंकि अब उसके पास नया बहाना था क्या कि अब मेरी बैक पर तो हम्प हो गई है. तो हाउ कैन आई डू एनी वर्क? आई एम नॉट एबल टू डू एनी वर्क. दैट वॉज द पर्पस. वॉट इज द जिन सेड? दैट वॉज द पर्पस. यही एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज. तुमने उन 3 दिनों में जो खो दिया है ना, इसलिए मैंने किया है. You will be able to work now for 3 days without eating. अब तुम्हारी जो हम पे इसके कारण क्या होगा? तुम 3 दिनों तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए रह सकते हो और सारा काम कर सकते हो. Because you can live on your hump. Because your hump is beneficial. Your hump can give you the excitement, give you the courage to do work without eating or drinking something.
एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तो फिर अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। वॉट इज द, बिकॉज जिन इज द किंग ऑफ द डेजर्ट, ही इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द डेजर्ट। तो किसी क्या कहता है, डोंट कंप्लेन मी दैट आई नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। क्या करो, इससे यहाँ से बाहर चलो। और जो तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स हैं ना, कौन कौन, हॉर्स, डॉग एंड कैमल, और उनके साथ में अच्छा बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और कैमल कहाँ चला जाता है, अपने तीनों फ्रेंड्स को ज्वाइन करने चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प। तो इसलिए उस दिन से अभी तक क्या होता है, ऑल द कैमल्स हैव अ हम्प इन देयर बैक, वी कॉल इट हम्प नाउ। और हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, और इसका हमारा कोई पर्पस क्या नहीं है, उसे हर्ट करना नहीं है। बट ही हैज नेवर येट कप अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब क्या होता है, वो उन 3 दिनों को कभी नहीं भूल पाता जब हमारा जो दुनिया शुरू हुई थी, जब जो उसे मिली थी। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और क्या होता है, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि कैसे बिहेव करना है। कैन यू थिंक व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिनिश्ड इट दैट but the camel has never ever know that how to behave with others. Who wrote this? The writer of this chapter is Rudyard Kipling. Ambridge University से वो Ambridge से जो है वो belong करते हैं। This is the end of the chapter and this is your exercise time. Comprehension first, comprehension second, and exercise we will learn, teach in your next lecture. But now I also want to say that have you ever think that why the camels live in the desert, and in the desert no any other animal live there, because from the beginning of the world the camels are living alonely. Okay, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, और because of his hump he can without eating or without drinking live for the 3 days. So okay, so my dear student, I hope that you enjoy your first class with your English teacher Apeksha Didi, and have a nice day to all of you. So let's bye, and we will meet again in our next session. Okay, bye.